Hello kids, welcome to the class of computer class 4. The chapter number is 2. Organizing files and folders. Learning outcomes. At the end of this chapter, students will be able to manage files and folders using Windows 10. So kids, इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आप किन आउटकम्स के बारे में लर्न करेंगे? आप सबसे पहले जानेंगे कि आप Windows 10 को यूज़ करके कैसे फाइल्स और फोल्डर्स को मैनेज कर सकते हो. Create a folder, then you will learn how you can create a folder in the computer system. Rename, delete and restore a file and folder. And you will learn how you will be able to rename, delete and restore a particular file and folder. So kids, let's start the lesson. Warm up. Reena wants to organize the things in a proper way. Help her by matching the objects with their appropriate storage. So kids, इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है? आपको एक पिक्चर गिवन है एंड इसमें एक गर्ल है रीना. इसको आपकी हेल्प करनी है. जितने भी ऑब्जेक्ट्स जो हैं यहाँ पे फैले हुए हैं, आप जो है उनको प्रॉपरली मैच करेंगे विद देयर स्टोरेज स्पेसेस के साथ. Teacher's note. Inform students that we keep or arrange our items at home. Similar to this, we can use files and folders to keep our data on computers. So kids, this activity will be performed by your teacher in your classroom. Hi friends, let's learn how to keep our data in files and folders on computers. We make files and folders which makes it easier for us to remember where we have stored our work. Let us learn how to manage files and folders using Windows 10. So kids, हम जो है जितना भी वर्क हम करते हैं कंप्यूटर में, वो जो है हम फाइल्स एंड फोल्डर्स में जो है जाके सेव करते हैं सो दैट हमें ईजी रहे रिमेंबर करने पे उनकी लोकेशन को टू स्टोर आवर वर्क. एंड अब जो है हम कैसे Windows 10 का यूज़ कर सकते हैं फाइल्स एंड फोल्डर्स को क्रिएट करने में, वो हम देखते हैं. एट्रीब्यूट्स ऑफ Windows 10. Windows 10 के क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, क्या फीचर्स होते हैं, we will read this. In Windows 10, multiple users can work on one computer system at the same time. So kids, Windows 10 में जो है एक ही सेम टाइम पे मल्टीपल यूजर्स वर्क कर सकते हैं, वो भी एक ही सिंगल कंप्यूटर सिस्टम पर. The search tool of Windows 10 is called Cortana, which lets us search for any information on the system or on the internet directly. So kids, Windows 10 में एक सर्च टूल होता है which is named Cortana. इससे जो है हम कोई भी इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं अपने पड़े हुए सिस्टम पे, एंड उसके साथ जो है अगर हम इंटरनेट से डायरेक्टली कुछ सर्च करना चाहते हैं तो वो भी जो है हम इसकी हेल्प से कर सकते हैं. It also provides the feature of downloading free and paid apps from an application called the Microsoft Store. So kids, ये हमें प्रोवाइड करता है कि हम जो है Microsoft एप्लीकेशन से जो है काफ़ी सारी फ्री और पेड एप्स को डाउनलोड कर सकें. We can open numerous desktops simultaneously by using the Task View button. And kids, हम Windows 10 में जो है Task View बटन की हेल्प से जो है काफ़ी सारे डेस्कटॉप्स जो है साइमल्टेनियसली ओपन कर सकते हैं. The snap feature allows us to drag and drop a window to a corner of the screen, thereby making space for the other application. And kids, Windows 10 में जो है हमारे पास snap feature अवेलेबल है जिसको हमें अलाउ करता है कि हम जो है ड्रैग और ड्रॉप कर सके विंडो को टू द कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन. इससे क्या होता है, हमें जो है काफ़ी सारी स्पेस प्रोवाइडेड हो जाती है और अदर एप्लीकेशंस को रखने के लिए. It enables to start more than one program at a time. And ये हमें हेल्प करता है कि हम एक टाइम पे एक से ज़्यादा प्रोग्राम को रन कर सके हमारे सिस्टम पे. And kids, this is the logo of Windows logo. Let me answer. Which is the most commonly used operating system developed by Microsoft Corporation? So kids, you will write the answer of this question on your own. Do you know Cortana interacts naturally via talking or typing and provides relevant recommendations, quick access to information, better searches and important reminders. So kids, Cortana जो है naturally भी interact करता है with the help of talking or typing, and ये जो है हमें काफ़ी relevant recommendations भी provide करता है
इंफॉर्मेशन को क्विक एक्सेस करने में हेल्प करता है एंड हमें इंपॉर्टेंट रिमाइंडर्स के बारे में भी बताता है। फाइल्स। A file is a collection of data or information. When you save your work in a program, it is saved as a file. So kids, फाइल क्या होती है? फाइल जो है कलेक्शन होती है डेटा और इंफॉर्मेशन की, एंड हम जो भी वर्क अपना सेव करते हैं कंप्यूटर के सिस्टम पे, वो जो है एज अ फाइल सेव होता है। Files are represented on computers by icons. The Windows 10 operating system allows us to generate many file types. So kids, फाइल्स जो है हमारे कंप्यूटर के सिस्टम पे थ्रू आइकन्स के थ्रू जो है हमें रिप्रेजेंट होती है, एंड विंडोज 10 जो है हमें अलाउ करता है कि हम जो है काफ़ी सारी फाइल्स के टाइप्स को जनरेट कर सकें। द टाइप ऑफ फाइल कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय इट्स आइकन, एंड हम जो है आइकन की हेल्प से जो है टाइप ऑफ फाइल को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। And kids, these three pictures are the icons of the file. The first one is the Word file. This is the PowerPoint file, and the third one is picture file icon. Folders. A folder serves as storage for files and other folders. A folder within a folder is called a subfolder. So kids, folder क्या होता है? Folder जो है हमें storage provide करता है जिसमें हम files और other folders को store करते हैं, एंड फोल्डर के अंदर दूसरे फोल्डर को कहा जाता है सब फोल्डर। वी कैन क्रिएट एनी नंबर ऑफ फोल्डर्स वेयर ईच कैन होल्ड एनी नंबर ऑफ फाइल्स एंड सब फोल्डर्स। सो किड्स, हम जो है अपने कंप्यूटर के सिस्टम पे एनी नंबर ऑफ फोल्डर्स को क्रिएट कर सकते हैं, एंड उसके अंदर जो है हम एनी नंबर ऑफ जो है फाइल्स और फोल्डर्स को स्टोर कर सकते हैं। And kids, these are the three pictures of folders. The first one is pictures folder, this is desktop folder, and this is documents folder. Creating a folder. Follow the given steps to create a folder. So kids, अब क्या steps होती हैं folder को create करने के? Go to the location where you want to create the folder. So सबसे पहले आपको अपना cursor जो है उस location पर लेकर जाना है जहाँ आप अपना folder create करना चाहते हैं। राइट क्लिक ऑन अ ब्लैंक स्पेस, देन वहाँ पे ब्लैंक स्पेस पे जो है आप राइट क्लिक करेंगे, सेलेक्ट न्यू, देन फोल्डर फ्रॉम द कंटेक्चुअल मेन्यू। उसके बाद जो है आप सेलेक्ट करेंगे न्यू फ्रॉम द कंटेक्चुअल मेन्यू से। विंडोज विल क्रिएट द न्यू फोल्डर एट योर करंट लोकेशन, एंड उसके बाद जो है विंडोज क्या करेगा, आपकी करंट लोकेशन पे जो है न्यू फोल्डर को क्रिएट कर देगा। एंटर योर डिजायर्ड फोल्डर नेम एंड प्रेस एंटर। उसके बाद जो है वहाँ पे आपको फोल्डर का डिजायर्ड नेम जो है टाइप करना है, एंड आप उसके बाद एंटर की को प्रेस करना है। आपका फोल्डर जो है क्रिएट हो जाएगा विद द नेम। शॉर्टकट कीज कॉम्बिनेशन, प्रेस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन की कॉम्बिनेशन टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर। एंड किड्स, अगर आप शॉर्टकट कीज का कॉम्बिनेशन यूज करना चाहते हैं तो आप जो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन की को कंबाइनली प्रेस करके जो है एक न्यू फोल्डर को भी क्रिएट कर सकते हो। एंड किड्स, यहाँ पे जो है आप क्रिएटिंग अ फोल्डर की पिक्चर को देख सकते हैं। सबसे पहले आपने एक ब्लैंक स्पेस पर राइट क्लिक किया, वहाँ पे आपका जो है कंटेक्चुअल मेन्यू ओपन होगा, उसमें आप जो है न्यू पर क्लिक करेंगे, एंड न्यू के अंदर जो है आप फोल्डर पे क्लिक करेंगे, एंड आपका फोल्डर जो है क्रिएट हो जाएगा। फाइल एक्सप्लोरर विंडो. File Explorer window provides comprehensive details of the drives, files and folders that are present in our system. So kids, File Explorer window क्या है? ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जितनी भी हमारी फाइल्स, फोल्डर्स और ड्राइव्स वगैरह प्रेजेंट होता है उसकी इंफॉर्मेशन के बारे में हमें बताता है। In this window we can also create, open, move और remove a folder. एंड इस विंडो के अंदर जो है हम एक फोल्डर को ओपन कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं एंड उसको रिमूव भी कर सकते हैं। एंड किड्स, दिस इज द पिक्चर ऑफ अ फाइल एक्सप्लोरर विंडो। ओपनिंग फाइल एक्सप्लोरर। सो किड्स, अब जो है फाइल एक्सप्लोरर को आप कैसे ओपन कर सकते हैं? फॉलो द गिवन स्टेप्स टू ओपन फाइल एक्सप्लोरर। स्टेप्स नंबर 1, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। सबसे पहले जो आप किड्स स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। नंबर 2, सेलेक्ट द फाइल एक्सप्लोरर। वहाँ पे जो है आप फाइल एक्सप्लोरर को सेलेक्ट करेंगे। नंबर 3, द फाइल एक्सप्लोरर विंडो विल ओपन, एंड सेलेक्ट करने के बाद जो है आपका फाइल एक्सप्लोरर विंडो जो है ओपन हो जाएगी।
Shortcut keys combination. Press Win plus E key combination to open Window File Explorer. And kids, Window File Explorer को ओपन करने की क्या शॉर्टकट की है? वो है Win plus E key. इसको आप कंबाइनली प्रेस करेंगे तो आपका जो है फाइल एक्सप्लोरर विंडो जो है डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। एंड किड्स, दिस इज द पिक्चर ऑफ ओपनिंग फाइल एक्सप्लोरर। ओपनिंग अ फाइल एंड फोल्डर। Follow the given steps to open a file and a folder. So kids, आप किसी फाइल और फोल्डर को कैसे ओपन कर सकते हैं उसके स्टेप्स हम देखते हैं। स्टेप्स नंबर 1, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। सबसे पहले आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। नंबर 2, ओपन द फाइल एक्सप्लोरर विंडो। फिर आप वहाँ से जो है फाइल एक्सप्लोरर विंडो को ओपन करेंगे। नंबर 3, चूज द फोल्डर और अ फाइल यू वांट टू ओपन। उसके बाद जो भी डिजायर्ड फोल्डर और फाइल आप ओपन करना चाहते हैं उसको आप चूज करेंगे। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। अ कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ऑल्सो कॉल्ड कॉन्टेक्चुअल शॉर्टकट एंड पॉप-अप और पॉप-अप मेन्यू is opened when we right click anywhere on the app. So kids, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू क्या होता है, जिसको हम कहते हैं शॉर्टकट और कॉन्टेक्चुअल और पॉपअप मेन्यू। एंड ये जो है ओपन हो जाता है हम किसी भी स्पेस पे जो है अगर राइट क्लिक करते हैं तो। इट प्रोवाइड्स ऑप्शंस दैट कैन बी एक्सेस्ड क्विकली। लेट अस नो हाउ टू यूज द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। सो जब भी हम किसी भी स्पेस पे राइट क्लिक करते हैं तो ये हमें जो है काफ़ी सारे ऑप्शंस प्रोवाइड करता है, जिससे जो है वहाँ से डायरेक्टली क्विकली जो है चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। सो किड्स, अब हम देखेंगे हम जो है कॉन्टेक्स्ट मेन्यू का कैसे यूज़ कर सकते हैं। Using context menu. By using the context menu, a folder can be opened. Follow the given steps to open a folder using the context menu. So kids, अब जो हम context menu को use करके कैसे जो है folder को open कर सकते हैं वो हम देखते हैं। Steps number 1, choose the folder you want to open. सबसे पहले kids, जो folder आप open करना चाहते हैं आप सबसे पहले उसको choose करेंगे। 2, right click on it. फिर आप उस फोल्डर पे जो है राइट क्लिक करेंगे। 3, फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू सेलेक्ट द ओपन ऑप्शन। एंड फिर आपका जो मेन्यू ओपन होगा वहाँ से जो है आपको सेलेक्ट करना है ओपन ऑप्शन। 4, द डिजायर्ड फोल्डर विल ओपन। एंड जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका जो डिजायर्ड फोल्डर जो आपने चूज करा था वो ओपन हो जाएगा। एंड किड्स, दिस इज द पिक्चर ऑफ द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। आप किसी भी स्पेस पर जो है राइट क्लिक करेंगे ये आपका ओपन हो जाएगा और यहाँ से जो है आप काफ़ी सारी चीज़ों को कर सकते हैं। नेमिंग अ फाइल एंड फोल्डर। सो किड्स, अब फाइल एंड फोल्डर को आप कैसे रीनेम कर सकते हैं वो देखते हैं। हैव यू एवर गिवन अ नेम टू समवन एंड वांटेड टू चेंज द नेम लेटर? Similarly, sometimes you may want to change the name of an existing folder or file. In doing so, renaming is required. Renaming is to change the existing name of the file or folder. सो किड्स, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि आपकी कंप्यूटर सिस्टम पे जो फाइल और फोल्डर्स प्रेजेंट है आपको उनका नेम चेंज करना है। सो उसमें क्या होता है, आप एग्जिस्टिंग फोल्डर और फाइल का नेम जो है न्यू क्रिएट करते हैं एंड रीनेमिंग इज टू चेंज द एग्जिस्टिंग नेम ऑफ द फाइल और फोल्डर। सो किड्स, इस पिक्चर में जो आपको शो किया गया है कैसे आप फाइल को रीनेम कर सकते हैं। जो भी फाइल फोल्डर को आप करना चाहते हैं उससे पहले आप राइट क्लिक करेंगे एंड वहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा रीनेम का एंड वहाँ से जो है आप उसको रीनेम कर सकते हैं। फॉलो द गिवन स्टेप्स टू रीनेम एन एग्जिस्टिंग फाइल और फोल्डर। स्टेप्स 1, राइट क्लिक ऑन द फोल्डर और फाइल दैट यू वांट टू रीनेम। सो आप सबसे पहले जो उस फाइल और फोल्डर पे राइट क्लिक करेंगे। 2, क्लिक ऑन द रीनेम ऑप्शन फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। देन आप कॉन्टेक्स्ट मेन्यू से जो है रीनेम ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। 3, टाइप द न्यू नेम फॉर द फोल्डर और फाइल। फिर आप जो है वहाँ पे टाइप करेंगे कीबोर्ड की हेल्प से। 4, प्रेस एंटर। फिर आप एंटर की को प्रेस करेंगे एंड आपका डिजायर्ड नेम आ जाएगा। लेट मी आंसर। What would you do if you save a science project by the name of a maths project? So kids, now you will write the answer of this question on your own. Shortcut keys. Press F2 to rename a folder. So kids, अगर आपको किसी फोल्डर को रीनेम करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की भी है। आप जो है F2 की को प्रेस करके जो है डायरेक्टली उसका नेम जो है चेंज कर सकते हैं। डिलीटिंग अ फाइल एंड फोल्डर। नाउ किड्स, वी विल स्टडी कि हम फाइल और फोल्डर को कैसे डिलीट कर सकते हैं।
There are some unused files and folders which you may want to delete. Deleted files or folders will be sent to the recycle bin. So kids, कभी कभार होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे जो है काफ़ी सारे अनयूज्ड फाइल्स और फोल्डर्स होते हैं, हम उन्हें डिलीट करना चाहते हैं. तो जैसे हम उन्हें डिलीट करते हैं वो जो है रिसाइकल बिन में जाके स्टोर हो जाती है. Follow the given steps to delete an existing file or folder. Steps 1. Right click on the folder or file which you desire to click. 2. Click on the delete option from the context menu. So kids, क्या स्टेप्स को आप फॉलो कर सकते हैं? आप इस पिक्चर में देखिए, यहाँ पे जो है डिलीटिंग अ फाइल और फोल्डर आपको शो किया गया है. आप जो भी डिजायर्ड फोल्डर या फाइल को डिलीट करना चाहते हैं, सबसे पहले आप उस पर राइट क्लिक करेंगे एंड आपका जो है ये कंटेक्स्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा एंड उसमें आपके पास ऑप्शन आएगा डिलीट का. वहाँ पे आप उस पर डिलीट पर क्लिक करिए, सेलेक्ट करिए एंड आपका फोल्डर जो है डिलीट हो जाएगा. शॉर्टकट कीज कॉम्बिनेशन, प्रेस द शिफ्ट प्लस डेल की कॉम्बिनेशन. सो किड्स, इसका शॉर्टकट की भी है. अगर आप ये स्टेप्स नहीं फॉलो करना चाहते, आप जो है शिफ्ट प्लस डिलीट की के कॉम्बिनेशन को प्रेस कीजिए, आपका फोल्डर जो है डिलीट हो जाएगा. रीस्टोरिंग अ फाइल एंड फोल्डर. Sometimes you might unintentionally delete a file. To bring back the file from the recycle bin is called restoring. So kids, कभी जो है हम बाय मिस्टेक कोई फाइल फोल्डर को डिलीट कर देते हैं, तो हम जो है उसे रिस्टोर कर लेते हैं फ्रॉम द रिसाइकल बिन एंड उसे कहा जाता है रिस्टोरिंग. Follow the given steps to restore any file or folder. So kids, क्या स्टेप्स होते हैं फाइल और फोल्डर को रिस्टोर करने की, वो हम देखते हैं. 1. Double click on the recycle bin icon on the desktop. सबसे पहले जो आप डेस्कटॉप पे जो आपका रिसाइकल बिन का आइकन प्रेजेंट है उस पर आप डबल क्लिक करेंगे. 2. The contents of the recycle bin get displayed in a new window. एंड उसके बाद रिसाइकल बिन में जो भी आपका डिस्प्ले है, जो भी कंटेंट्स वहाँ पे प्रेजेंट है, वो जो है एक न्यू विंडो में शो हो जाएगा. 3. राइट क्लिक ऑन द फाइल और फोल्डर यू वांट टू रिस्टोर. उसके बाद जो आप फाइल पे जो है राइट क्लिक करेंगे जो भी आप रिस्टोर करना चाहते हैं. 4. क्लिक ऑन द रिस्टोर ऑप्शन फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू एंड जब आप उस पर राइट क्लिक करेंगे तो आपका जो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ओपन होगा एंड वहाँ पे जो है आपको क्लिक करना है रिस्टोर ऑप्शन पे. 5. The file or folder will be restored to its original location. And kids, जिस लोकेशन से आपने उस फाइल और फोल्डर को डिलीट किया था, वहाँ पे जो है उसी सेम प्लेस पे, सेम लोकेशन पे जाके जो है वो फाइल और फोल्डर रिस्टोर हो जाएगा. सो किड्स, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, आप जो है अगर इस फोल्डर को रिस्टोर करना चाहते हैं, यू विल क्लिक द राइट क्लिक एंड वहाँ पे जो है आपके पास रिस्टोर का ऑप्शन आएगा एंड वहाँ से जो है आप इसको रिस्टोर कर सकते हैं. किड्स IQ. I am the pop-up menu you see when you right-click the mouse. Who am I? The correct answer is context menu. Let's recall. In Windows 10, multiple users can work on one computer system at the same time. So kids, Windows 10 में जो है एक ही सेम टाइम पे मल्टीपल यूजर्स जो है एक ही कंप्यूटर सिस्टम पे वर्क कर सकते हैं. अ फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन. फाइल क्या है? फाइल जो है कलेक्शन है डेटा और इंफॉर्मेशन की. अ फोल्डर सर्व्स एज स्टोरेज फॉर फाइल्स और अदर फोल्डर्स. सो किड्स, फोल्डर जो होता है वो हमें सर्व करता है स्टोरेज, किसके लिए? फाइल्स और अदर फोल्डर्स के लिए. अ फोल्डर विद इन अ फोल्डर इज कॉल्ड अ सब फोल्डर. एंड जब एक फोल्डर दूसरे फोल्डर के अंदर प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं सब फोल्डर. A context menu provides options that can be accessed quickly. And context menu जो है हमें वो options provide करता है जिसको जो हम directly वहाँ से quickly access कर सकते हैं. Renaming is to change the existing name of the file or folder. And renaming क्या होता है kids? जब हमें file और folder का existing name change करना होता है उसे हम कहते हैं rename. Upskill your intelligence. A. Fill in the blanks. 1. The search tool of Windows 10 is called Dash. Answer is Cortana. 2. We can open numerous desktops simultaneously by using the Dash button. Answer is Task View. 3.
The type of the file can be recognized by its dash. Answer is icon. 4. A folder serves as dash for files or other folders. Answer is storage. 5th, a context menu is also called a dash menu. Answer is shortcut. B. Match the following. So kids, हम column 1 को column 2 के साथ match करेंगे. 1. Control plus Shift plus N key. The correct answer is create a folder. 2. Win plus E key. The correct answer is open File Explorer. 3. F2. Answer is rename a folder. 4. Shift plus del key. The correct answer is delete a folder. C. Write T for true statements and F for false statements. 1. Search tool is an application where you can get free and paid apps. The correct answer is true. 2. A folder is a collection of data or information. False. 3. Restoring is changing the existing name of the file or folder. False. After restoring, the file will move to its original location. True. 5. By using the context menu, a folder can be opened. True. D. Tick the correct answers. 1. Deleted files or folders will be sent to dash. Options are A. Search tool, B. Window store, C. Recycle bin, D. Window Explorer. The correct answer is C. Recycle bin. 2. A folder within a folder is called a dash. A. In folder, B. Inside folder, C. View folder, D. Subfolder. The correct answer is D. Subfolder. 3. It shows a series of commands to access quickly. A. Title bar, B. Context menu, C. Tab menu, D. View menu. The correct answer is B. Context menu. 4. If you want to give a new name to a file or folder, you will dash it. Options are A. Restore, B. Delete, C. Rename, D. Move. The correct answer is C. Rename. 5th, which button provides the ability to open multiple desktops at the same time? Options are right click, B. Task view, C. Control, D. Shift. The correct answer is B. Task view. E. Answer the following questions. 1. State any 3 features of Windows 10. The answer is the 3 features of Windows 10 are: number 1. Multiple users can work at the same time on a single computer system. Number 2. It provides us the Microsoft Store application from where we can download multiple free and paid applications. Number 3. It enables us to open numerous desktops simultaneously. 2. What is a folder? Answer is a folder is a storage space which helps us to store multiple files and other folders. 3. What is the use of context menu? The answer is the use of the context menu is to access the various options quickly. 4. Write the steps to rename a file. The answer is the steps to rename a file. Number 1. Right click on the file which we have to change. Number 2. Click on the rename option from the context menu. Number 3. Type the desired name. Number 4. Press enter key. 5. Define a file. The answer is a file is a collection of
information and data. Critical thinking. Rahul wants to create a folder. The steps has written are not in order. Number the steps to help him create a folder. So kids, इस क्वेश्चन में क्या है, राहुल को जो है फोल्डर क्रिएट करना है एंड यहाँ पे जो है काफ़ी सारे स्टेप्स जो है गिवन है, बट ये जो है करेक्ट सीक्वेंस में नहीं है. हमें जो है इनको करेक्ट सीक्वेंस में नंबरिंग करनी है. सो किड्स, फर्स्ट स्टेप वुड बी go to the location where you want to create the folder. So we will number it as 1. The second step would be right click on a blank space. The number 3, select new then folder from the contextual menu. The fourth step would be Windows will create the new folder at your current location. And the last step would be enter your desired folder name and press enter. So we will number it as 5. The correct sequence is 4, 5, 3, 1, 2. Teamwork. Circle the files in red color and the folders in yellow. Further discuss the steps of deleting a file with your partner. So kids, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको जो है फाइल्स को जो है रेड कलर से एंड फोल्डर्स को जो है येलो कलर से सर्कल करना है इन गिवन पिक्चर्स में से, एंड उसके बाद जो है आपको अपने पार्टनर से डिस्कस करना है कि क्या स्टेप्स इन्वॉल्व रहेंगे एक फाइल और फोल्डर को डिलीट करने में. So kids, you will do this activity on your own. Thank you kids. I hope you enjoy the learning. See you in next class.